Okay, so hello, assalamu alaikum, and good evening, beautiful people. This is me, Rashid Wasan, GDSC lead, welcoming you all to this career counseling session featuring the Google Cloud Platform architect, Saad Mujeeb, and the event is organized by Google Developer Student Club's Mute Jamshuru. Our speaker is the box of talent, having 6 years of experience in various job positions in different well known firms. Speaking of Mr. Saad's skill set, he is a full stack developer, having a good command over Node.js. Also, he is a Strapi community star, working on Nuxt and Flutter, as well as Amazon Web Services, along with Google Cloud Platform. So, session is going to be a bit longer. So, grab a cup of coffee and let's have some technical discussion with our speaker. Over to you, Saad bhai. Okay, assalamu alaikum guys. So I'll just go with a very quick overview of myself. I'll introduce myself. So it has not been 6 years. It has been like around 7 years now. Completed in 2021, and so yeah, 7 years have been completed in my career. I have worked with like 4 or 5 companies till now. And in those companies, I've worked as a full stack developer. Then I was promoted as a project manager, and then down the career, it was solutions architect, and now currently I'm in Royal Cyber, working as a GCP cloud architect. In these years, I've also started, I jumped into business side. I launched some businesses out of the domain, not related to technology. Those drastically failed, and but alhamdulillah, I was able to successfully run one business that is with the name of Isa Tech, and running it for 1 year or 2 years maximum. I handed it over back to my partner, and that is alhamdulillah working successfully. Some of you guys are already aware of my business, and that is working in local and basically it's from the abroad. So projects based and with Flutter, mobile applications, and some cloud solutions. Anyways, now I'm in Royal Cyber as the GCP cloud architect. My job description basically is to design clouds, infrastructures for clients, for migrations, and cloud migration, and tons of other stuffs. So this is my short introduction. So I guess Rashid Wasan, you can ask questions, anyone which you want to. Okay, so we have a set of questions already prepared. Mr. Saad, we are going to ask second question. First, तो आपने almost बता ही दिया, जो कि students ने पूछा था कि how did you start your career and how is it going today? तो उसका तो answer मिल गया. And the second question. No. If that is the first question, I'll actually answer that in a little bit detail. That how I started my career. So okay, this is important actually regarding, because some people would be coming in my place like when they'll be graduating from the universities and they will be looking for jobs. So I guess it's important for me to at least tell my experience in that first initial stages, how I started my career. So after graduation, before graduation, I was in my last year where I secured an internship in TRG, and that was where I learned practically how our field is being, what we do in our field. It was nothing related to what we were studying in my university. So I'm from Sir Syed University, by the way. So a batch of 2011. So when I started my first internship, that was in TRG, I learned, I'm open to telling that I learned my basic programmings in my internship. I did not learn that from my university at that time. So after my internship, that was the 4th year of my university. And after that, I got a job in a company that was basically a junior web developer, where I started with .NET Web MVC. You guys are already familiar, I hope, with the MVC pattern and the technology of .NET. So that first job was actually the first hurdle. Before getting that job, just like almost everyone, I had that feeling that I'm not getting a job. What's wrong? And I'm appearing in interviews and I'm not getting, no one is calling me on that part. But it just took like around 3 months, 4th of May 2015, and then I got that offer. I remember the date exactly, by the way. So that is how I just secured my first job. The interview was actually totally technical, and it was nothing from what you study in the universities. So
what I would suggest over here is that you guys should be studying more than what you are already studying in your university. With study, I only mean theory. I'm not talking about practical, because I believe the people in the universities, they already have some practicals, and their practical knowledge is already to some extent which is implemented in the professional lives. But when you study about technologies and their implementations and what problems they are solving and how they are working around, so that is basically which gives you an edge in that interview, in your first interview actually, to pass. Because me as a interviewer, when I see a candidate who is like appearing for the first time, he's his fresh graduation and he's appearing for his first job, I'm generally looking into like, does that guy has a spark? Like, is he into technology? Like, if he's come a tech industry as on a job or on an internship, even on an internship, yes, I'll see that, does that he is into that field, or is he like just out of boredom? He's like, I just want a job in an IT industry, maybe just wake up one morning and disappear in an interview. So this is not what I want in my team, that someone is just doing out of responsibilities at home, that's why he wants to do a job. It's more about passion. So if you any one of you guys are into the tech industry, so the interview is generally looking into that passion, that does that candidate has that passion in the field, or is he more like running out with that responsibility, financial responsibilities of running the home. So that does count. That actually should be a motivation. That should not be a fear. Like, if you do not get a job, then who will run my house? This is fear. But it should be, what I'm looking for is that I am more towards I love this technology. Let's talk about one technology at this over here. So Flutter, for example, I took my first Flutter developer on board like 2 years ago, maybe. So that guy, what I saw in him, that he was passionate towards designing, and I saw his first designs, and that was totally out of sitting, I guess, maybe at home, and then he designed some an app. And I saw that on LinkedIn, and I approached that guy. And by the way, that guy is the Rashid Wasan over here, who I took first like 2 years ago. So this is what I'm looking at. It's passion. It's not something you apply for a job and then you read. When you have that passion, you are showcasing your skills. Most probably, the interviewers or the recruiter would approach you directly, rather than you applying and then getting an interview. So this is a win-win situation, and this is mostly good at your part, that if the recruiter comes to you by himself and then offers you a job, this is a better one. So no, anyways, but I did not get my first job that way. I had to apply and maybe use some references, I believe, to secure that job. So yes, I hope that answers the first question. Rashid. Okay, so we have a second question, that what are the different types of people working in Pakistan's bigger tech firms? I mean, different designations that we can apply for in Pakistani tech firms. So, okay, this question is this is a bit brief one. Like, if you are talking about designations, like what designations are in like Pakistan which you can apply on. So it's basically, it comes down to two types of people, two types of candidates. Like, the first candidate is actually the most passionate one, and there is it's a whole debate. Like, I am a person who does not look at GPAs and grades. That's not my part. That's not my thing, actually. I'm more looking towards the skill and the passion. So now it comes to two types of candidates. The first type is the one who has good grades, zero experience, and maybe not that passionate towards the industry. And the second one is maybe not good grades, maybe not a good FYP, but is passionate, has experience with hobbyist experiences, like creating own applications, things like that. I'm more like this type of interviewer. I'm more into the second class of candidates who are applying at the jobs. The university from which they graduate, that's not my thing to look at.
if the candidate, convinces me within the first 15 minutes of the interview, I'm good to go for recommending them to get hired with the HR. So this is like two types of candidates. Now when we talk about the designations where they should be applying, or which are good for them, the first thing comes as the fresh graduates. So is generally a junior level like a vacancy. For example, there are web developers, so there are junior web developers. But I believe personally is that the candidate should regard himself as, am I a senior or am I a junior or am I an intermediate level developer? So based on that evaluation of yourself, I believe in self evaluation first. So when you guys evaluate yourself that I'm not a junior developer because I have been working with technologies, I have some projects made, and I know that these are made with industry standards. So I don't believe that I'm a total junior developer, with a zero experience. So that's where you guys would be applying at an intermediate level job, or maybe something which does not classify as junior, and you can just read the job descriptions and you can understand that, okay fine, do you fit in that job role or not? So whenever there is, I would motivate every candidate that do not just look for junior level jobs when you are applying for it. So, and neither you should be looking at internships. Like for example, I have seen in students from like all major universities in Pakistan who have been contacting me just for an internship, whereas when I look at that candidate, I see that that guy is not fit for an internship. He should be offered a job. So yes, I agree that the industry trend in Pakistan has been like they don't like to hire developers who are studying, but I have seen big companies who do that as well. In fact, people in RC, my teammates, they are still graduating from Mehran University, by the way, and there are some which are from Sir Syed, and there are some from PF Keat, if I'm not wrong. Yeah, I have a huge team. So that's not the only constraint, that if you guys would be thinking that we need an internship first and then we'll go towards a job, that's generally not how every industry is looking at. So if you guys have the skill, you should be applying for a permanent position job, and in those companies, the HR, the recruiters, they are aware of your responsibilities as a student, that first you have to study. So they design your job responsibilities accordingly. There are some cooperative companies in this regard, but once you are graduate, so it's a big industry, open market where you can apply. I'll add one thing at this: do not get demotivated if you do not get that internship or that job. Always believe in your skill and your passion, and do not run too much towards getting that job. If you had a dream company in your mind that you wanted to get a job in that, and maybe they did not call you, so that's not a point of demotivation. You should believe in your skill, that you are something and they need you instead of you need them. Think it in this way, and your journey would be much easier in the initial phases of securing that first job. Yes, Ashit. Okay, Saad bhai, आपने कहा था कि we are going to be going with mix of English and Urdu. तो English and Urdu का mix ही रखते हैं, totally English में नहीं switch करते, because we have got some freshies here, तो वो नहीं कोई issue वगैरह ना हो. Okay, so here is another question. If someone is not good at developing, what else can he do in tech industry? यही इस question से related है कि मतलब different positions कौन सी हैं. अच्छा ठीक है, अब मैं ये सवाल को मैं बहुत आसानी से जवाब दे सकता हूँ. अगर कोई ऐसा डेवलपर जो फ्रेश ग्रेजुएट हुआ, who is not a developer himself, so there are still tons of opportunities in this tech industry. अब कौन सी है? मिसाल के तौर पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर कुछ चीजें वो हैं जो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड है, कुछ चीजें मैनेजमेंट से रिलेटेड है, कुछ चीजें कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है. एक सॉफ्टवेयर
प्रोजेक्ट या फिर वो भले से वो हार्डवेयर से भी रिलेटेड हो, व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट एन आईटी प्रोडक्ट या फिर एक ऐसी कंपनी जो कि आईटी सर्विसेज में डील कर रही है, सो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट इज नॉट द ओनली जॉब रोल. कुछ चीजें वो हैं जो कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड होती हैं. मिसाल के तौर पे आप लोगों के दरमियान में कई वो बच्चे होंगे जिनके जो हैं वो स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, ठीक है, जिनको बात समझ बहुत जल्दी आ जाती है, जो बात अपनी कन्वे बहुत अच्छी कर लेते हैं. तो ऐसे भी स्टूडेंट्स, और ये डेवलपर्स अच्छे नहीं होते हैं. मिसाल के तौर पे अक्सर ऐसा होता है बल्कि कि जो डेवलपर होता है वो नॉर्मली, जो मैंने अपने इन 7 सालों के अंदर देखा है, वो डेवलपर की अपनी स्पीकिंग स्किल्स इतने अच्छे नहीं है. ठीक है, तो मैं अपनी टीम के अंदर ऐसे डेवलपर को कभी भी क्लाइंट फेसिंग के ऊपर नहीं रखता. दिस इज लाइक जनरल रूल ऑफ थंब, हु हैज कम्युनिकेशन इश्यूज, यू डू नॉट कीप देम इन क्लाइंट फेसिंग रोल्स. और जिसके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, मुझे इत्तेफाक से वो अच्छे डेवलपर्स नहीं मिले. ठीक है, क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी थी, उनकी मार्केटिंग स्किल्स बहुत अच्छी थी, उनकी एक्सप्लेनेशन, जो वे ऑफ एक्सप्लेनेशन वो बहुत अच्छा था. तो ऐसे लोगों को हमने लिया फॉर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स. ये आज से तकरीबन 5 साल पुरानी बात है, तकरीबन मेरी आई थिंक सेकंड कंपनी थी. तो हमें एक ऐसे कैंडिडेट्स चाहिए थे जो क्लाइंट फेसिंग के ऊपर हम उनको रख सके. तो मैंने वो लोग चूज करे जो टेकी थे, जो अपने जो टेक्नोलॉजी के जो लेटेस्ट ट्रेंड्स है उन सब से अपडेटेड थे, लेकिन वो खुद इतने अच्छे डेवलपर्स नहीं थे. So they were like the best fit for the job because they had that communication skills, their presentation skills. ये बहुत matter करती हैं. ठीक है, the first impression is the last impression. जो अपना first impression बहुत अच्छा बना लेता है, so it's not important he's a good developer, but definitely he has that skill to present himself, the idea of the product to the client, and vice versa. So there is this thing that it's not just development. There is that project coordination, project coordinator jobs which you can look forward. There are some jobs which are in more towards management. So things like associate project manager. So this is why I say an associate project manager, because my own colleague, like back in university times, his first job was actually an associate project manager. He was not a good developer, so that is why I know that this position is also filled by even fresh graduates who are good in management. There are traits of a good manager which you can see from जो candidate में नजर आ जाते हैं, how well managed he is. So उसको मद्देनजर रखते हुए you get jobs as associate project manager, or maybe project coordinator. That's one thing, and it's actually a crucial role. It's more than a developer. Excuse me. So yes, there are roles other than developers, development for you all candidates, whoever wants to appear. Yes, Rashid. How should I evaluate myself to know for what position I'm the suitable candidate according to personality and skill set? Okay, so one way of answering is that looking yourself into the mirror, and you can maybe evaluate yourself that where you fit perfectly. Okay, by the way, this is just a proverb. Is just metaphorically what I'm saying, that looking yourself into the mirror. So what I mean exactly is that self-evaluation. So there are there can be things like the candidate himself is a very good developer, but he does not realize himself that what he is worth. So that's how you evaluate is you look into your past 4 years of your university life. You see that you have been into societies, with tech societies. You have been with competitions, like something is coming up in tech arena, speed programming and things like that. So you are going to be you are going to evaluate yourself by grade yourself at programming. Let's say you are giving your points from 1 to 10. So you choose a language. Maybe you are good with Dart language, with Flutter. So you just give your points, how much you know about Dart, how much experience you have on that. Just give yourself some points on it, and also include things which you think are not relevant to your job.
For example, I'll say over here, a developer who a Flutter developer, for example, thinks he is only good at Flutter, but I would say that grade yourself on user experience, for example. So user experience is entirely a different field. It's not related to development directly, but that is still a skill set which you guys should be grading. So अब user experience के अंदर मिसाल के तौर पे जैसे Flutter की ऐप है, तो Flutter developers जो है वो अपनी जब ऐप डिजाइन कर रहे हैं, तो अगर वो यूजर एक्सपीरियंस को मद्देनजर रख रहे हैं, मिसाल के तौर पे कितने क्लिक्स, मिनिमम नंबर ऑफ क्लिक्स को वो अचीव करते हैं एक फीचर को अचीव करने में, सो you have that user experience mindset, so grade yourself on that. उसमें अपने मार्क्स रखो कि ठीक है 1 to 10 के अंदर मैं यूजर एक्सपीरियंस, मैंने एक साल पहले जो अपने इंटर्नशिप के ऊपर एक ऐप बनाई और मिसाल के तौर पे वो एक ई कॉमर्स ऐप थी, तो उसके अंदर जो है मैंने एक सिंपल प्रोडक्ट का चेकआउट जो है वो मैंने विद इन 4 क्लिक्स मैंने अचीव करा है. सो और इसके एडवर्स के ऊपर आप ये भी कर सकते थे कि मिसाल के तौर पर वो 4 क्लिक्स में नहीं हो रहा था, वो आप 10 क्लिक्स में भी कर सकते हो. देयर आर मल्टीपल एप्स, यूज अ चाइनीज ऐप एंड यू विल नो दैट 3 और 4 क्लिक्स के अंदर काम नहीं होता, आपका चेकआउट प्रोसेस बहुत लंबा है. तो grade yourself on user experience, then grade yourself on user interface. So एक डेवलपर के पास ये जो यूजर डिजाइन, यूजर इंटरफेस है, वो जरूरी नहीं है हर डेवलपर का यूजर इंटरफेस डिजाइनिंग जो है ना वो बहुत अच्छी हो, वो बहुत क्रिएटिव हो. बट इफ यू सी दैट नो आई हैव दैट स्किल सेट ऑफ creating beautiful designs, you should grade yourself on user interface also. इस तरीके से अपने स्किल सेट्स को ब्रेक डाउन करो, ना कि सिर्फ अपने उस चीज को जो आपको लगता है कि यार मुझे अच्छी है. डोंट जस्ट राइट फ्लटर, डोंट ग्रेड योरसेल्फ ऑन फ्लटर, ग्रेड योरसेल्फ ऑन मोर देन दैट. फिर साथ में आप ये भी देखो कि यार जब मैं कोड करता हूं तो फिर मेरा कोड बहुत अच्छा होता है, ठीक है. आई एम कॉन्फिडेंट ऑन दैट कि जब मैं कोड करूंगा तो वो आगे इंटीग्रेशन करने वाले लोगों के लिए या फिर फॉर एग्जांपल डिप्लॉयमेंट करने वाले लोगों के लिए दैट वुड बी बेनिफिशियल. तो आप अपने कोड क्वालिटी को भी अपने रेट करो अपने आप को, ठीक है. अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूं कि हर एक एक चीज को ब्रेक डाउन करके रेट करो, उसके पीछे रीजन ये है कि उसके बाद आपको पता चलेगा कि आप जो है वो मे बी सिर्फ एक फील्ड के लिए नहीं बने गए हो. आपको मिसाल के तौर पे जब आप अपने आप को रेट करोगे कि डार्ट मुझे मिसाल के तौर पे मैं रेट करता हूँ 7 out of 10, लेकिन मैं यूजर एक्सपीरियंस के ऊपर रेट करता हूँ अपने आप को 10 out of 10, ठीक है. एंड देन लेट्स टॉक अबाउट डॉक्यूमेंटेशन. अगर मैं अपने कोड को प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट कर रहा हूं, मैं अपनी जो readme.md फाइल होती है गिटहब की, उसको मैं बहुत अच्छी तरीके से मैंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है. रेट योरसेल्फ ऑन डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है. And then you will come to the point that you will know that it's not just Flutter jobs which I should be looking at. If I'm not securing a job on the Flutter side, maybe I will be able to secure my job on the user experience side and then switch myself in the future. तो इस तरीके से जब आप अपने आप को रेट कर रहे होगे, अपने स्किल सेट को ब्रेक डाउन कर रहे होगे, जनरली आपने सीवीज में भी देखा होगा कि अपने स्किल सेट्स जो होते हैं वो ब्रेक डाउन हुए हुए होते हैं. तो उसके पीछे रीजन ही यही होती है कि भाई एक रिक्रूटर जो है वो जज भी कर सके कि भाई ये बंदा जो है वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल डेवलपर नहीं है, ये यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर भी है. तो दिस इज समथिंग विच इज कंसिडर्ड. तो आप अपने स्किल सेट्स को ग्रेड करो, ब्रेक डाउन करो, फिर ग्रेड करो एंड देन अप्लाई फॉर द रेलिवेंट जॉब्स वेयर यू सी ऑन द ओपन मार्केट. यस राशिद. ओके, साद भाई एक और क्वेश्चन है कि एक चीज है जो कि हम इग्नोर कर देते हैं डेवलपमेंट या फिर टेक्निकल चीजें सीखने में, वो होते हैं हमारे सॉफ्ट स्किल्स. लाइक हमारा बिहेवियर भी काफी मैटर करता है. तो उसका एक गुड बिहेवियर, अच्छे बिहेवियर की हमें प्लस पॉइंट्स बताएं जो कि एक इंटरव्यूअर हमें देखना चाहता हो या कोई रिक्रूटर. प्लस पॉइंट क्या होगी गुड बिहेवियर की, एथिक्स की? अच्छा, मैं इंटरव्यूअर हूँ मिसाल के तौर पे, ठीक है. मैंने जब भी आज तक इंटरव्यू लिया है, मैं बंदे की प्रेजेंटेशन स्किल्स लाजमी देखता हूँ, ठीक है, कि वो कितना प्रेजेंटेबल है. एंड दैट यू सेल योरसेल्फ 74% just by the first looks.
तो दिस इज वन थिंग कि मैं बिहेवियर के अंदर ये देखता हूँ कि वो कमरे में वॉक कैसे करके आया मेरे पास, सलाम करा, मतलब he has an attitude. So if he has that attitude, so does he has that skill that owns that attitude? So लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ attitude है, then it makes that first impression, but he fails in that interview because वो एटीट्यूड और वो नॉलेज जो स्किल सेट जो टेक्निकल इंटरव्यू लिया गया, दैट डज नॉट मैच. तो एक जनरली होता ये भी है कि जब you get more technical into technology and implementations and your projects with experience, you get that attitude by self is something natural. So yes, I as a recruiter would always judge that person. I will note that part कि okay fine, he has that attitude. It's not something negative, it's a positive attitude towards achieving something. तो अगर वो impression बहुत मैटर करता है, clothings बहुत मैटर कर रही होती है. It does not mean with clothing generally लोगों candidates को ये लग रहा होता है maybe you have to wear a suit, 3-piece suit with a tie and come to a bank maybe for example. So ये वो कुछ industries में होता होगा, but that does not always give a good impression. Sometimes वो negative भी हो जाता है. Be yourself, जो हो वो ही दिखाओ, ठीक है. If you are an underconfident person, just be what you are, ठीक है. बहुत से रिक्रूटर्स ये देख रहे होते हैं कि हाउ नेचुरल ही इज, हाउ रियलिस्टिक दैट गाय इज. जो आप जो है ना वो क्या कहते हैं, एक बहुत अच्छी मूवी है मुझे याद आ रही है, 3 इडियट्स के अंदर जब राजू अपना इंटरव्यू देने जाता है. सो ही वांटेड टू कीप हिज एटीट्यूड, जो कि बहुत अरसे बाद आया, बहुत मुश्किल से उसके पास आया. But this is something which happens also in the industry. If that guy has that positive attitude with a technical skill set required for that job, that gives a lot of positive impact on getting, securing that job. So yes, behavior does matter. The language you speak, that matters. And एक चीज को बस ये मैं यहाँ पे गाइड पॉइंट जरूर कर दूं कि शायद कैंडिडेट्स को मे बी ऐसा लगता है कि इंग्लिश में बात करेंगे तो ही जाके वो जॉब सिक्योर करेंगे. ठीक है, देखो जहां पर इंग्लिश इज रिक्वायर्ड वो अक्सर जेडी में लिखा हुआ होता है जहां पे आप अप्लाई कर रहे हो कि इंग्लिश इज मैंडेटरी फॉर एग्जांपल. ठीक है, और इट डज नॉट हार्म, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप कैंडिडेट से आप अपने इंटरव्यूअर से डायरेक्टली पहले पूछ लो कि डू यू वांट मी टू स्पीक इन इंग्लिश या उर्दू, इज नो प्रॉब्लम फॉर यू गाइस. तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती. रिक्रूटर्स इसको कभी कोई बुरा नहीं मान रहे होते कि यार इसने ऐसा सवाल क्यों कर लिया, ये कौन सा जाहिलों वाला सवाल है, ऐसा कभी भी इंप्रेशन नहीं कायम होता. तो इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, इफ यू थिंक यू हैव स्पीकिंग प्रॉब्लम विद इंग्लिश, आप भाई उर्दू में बात कर लो, इसमें कौन सी प्रॉब्लम की बात है. इफ यू एज लॉन्ग एज यू आर गिविंग एन इंटरव्यू इन पाकिस्तान, ऑब्वियसली दैट डज नॉट अप्लाई आउट ऑफ पाकिस्तान, सो इंग्लिश इज एक्सेप्टेड. तो जो भी लोग जिनकी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं है, प्लीज गो विद उर्दू, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. आप टूटी फूटी इंग्लिश भी बोल लेते हो, बट मी एज ए रिक्रूटर आई वुड प्रेफर कि यार जो बंदा जिसमें सही तरीके से बात कर सकता है ना भाई, उसमें बात कर लो. एट द एंड ऑफ द डे आप मे बी जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, दैट्स नॉट अ क्लाइंट फेसिंग रोल, इट्स मोर टूवर्ड्स डेवलपमेंट. सो मैं आपकी इंग्लिश का क्या करूंगा भाई, मुझे तो काम चाहिए ना एट द एंड ऑफ द डे. तो आप चूज करो और इंटरव्यू जो है वो अच्छा हो जाएगा निस्बतन एक टूटी फूटी इंग्लिश बोल के आप बात करो. मे बी आपके रिक्रूटर को वो आपकी लैंग्वेज समझ में ना आए, मे बी आपका स्किल सेट था लेकिन आपने वो उस लैंग्वेज वो चूज कर ली जिसकी वजह से आप वो डिलीवर नहीं कर सके. सो जनरली पाकिस्तान के अंदर उर्दू और इंग्लिश दोनों में इंटरव्यूज हो रहे होते हैं. सो दैट्स नो इशू बाय चूज द लैंग्वेज ऑफ योर चॉइस and then just ask your recruiter first that what is the language of your choice of the interview, and then आप interview दो, कोई मसला नहीं है इसमें. Behavior matters भाई. Yes, Rashid. अच्छा, काफी important question. Most students are afraid to apply for internships because of lack of confidence on their skills. Some motivation for them? Oh, okay. अच्छा, इत्तेफाक से मेरे पास तकरीबन कुछ पिछले 2 हफ्तों में 7-8 कैंडिडेट्स आए हुए मेरे पास एंड दे हैड दिस इशू कि मैंने एक्चुअली इंटरव्यू कॉल नहीं करी थी, मैंने मेनली काउंसलिंग कॉल ही करी थी. I was not hiring, but I told them, okay, fine, let's get on board, let's talk about this issue. तो
ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है. कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो जनरली बहुत कॉन्फिडेंट होता है, लेकिन मेजॉरिटी वो है जो इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होता है. उसके ऊपर मैं एक चीज बोलूंगा, और आई थिंक वो काफी होगी, कि भाई अपने आप पे भरोसा रखो. ठीक है, ब्रिंग दैट एटीट्यूड के दे नीड यू, you don't need them, that does not mean that this is reality. It's just about a mindset. अगर आप, मैं जो कहना चाह रहा हूं ये है कि भाई अपने आप पे भरोसा रखो, अपने स्किल सेट्स को समझो, पहचानो, एंड हल्का ना समझो. अगर आपको लगता है कि यार मेरा कोई स्किल सेट ही नहीं है, ठीक है, बट एट द बैकग्राउंड यू हैव दैट स्किल सेट. आपके पास कुछ ना कुछ मौजूद. अल्लाह ताला ने कोई भी चीज ऐसी नहीं बनाई जो बिल्कुल बेकार हो. तो आपका एक कोई ना कोई रोल मौजूद है. जस्ट फील कॉन्फिडेंट अबाउट इट. अगर आपको लगता है कि यार मुझे डेवलपमेंट नहीं आती, तो सो व्हाट, मुझे भी नहीं आती थी भाई. ठीक है, और इट हैज बीन लाइक 7 years इन माई एक्सपीरियंस. आज मुझसे इन 50 लोगों में से कोई भी खड़े होकर मुझे ये बोले, साद भाई आप जरा एक पैटर्न बना दे, दैट डायमंड शेप ऑन अ कंसोल, ठीक है, तो शायद मैं नहीं बना सकता. ठीक है, सो देयर इज नो हार्म इन टेलिंग इट, राइट. मैं बहुत आज 7 साल बाद आके मैं ये सबको बता रहा हूँ, पब्लिक फोरम ओवर राइट नाउ. मैं अगर बोल रहा हूँ मुझे पैटर्न नहीं बनाना आता, ठीक है, अगर कोई मुझे बोलता है पैटर्न बना दो, सो इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई. ठीक है, किसी कंपनी ने मुझसे पैटर्न बनवाने, ठीक है, नहीं बनवाने ना भाई. तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन टेलिंग दिस, यार ठीक है मुझे नहीं आता. हाफ नॉलेज इज एक्सेप्टिंग दैट यू डोंट नो. दिस इज अ वेरी फेमस कोटेशन फ्रॉम हजरत अली, दैट मुझे नहीं पता, ये आधा इल्म है. ठीक है, सो नाउ यू नो दैट व्हाई इज कॉल्ड हाफ that knowledge, because you know that you don't know is one half of the knowledge, and now you know what you have to do, that is the full knowledge. तो अगर आपके पास कोई स्किल सेट नहीं है, मिसाल के तौर पे अभी एक क्या कहते हैं, एक खातून थी, एक कैंडिडेट है बल्कि आप थिंक आपकी यूनिवर्सिटी में से, तो जिस इंडस्ट्री में वो अप्लाई करना चाह रही थी वो थी हमारी मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर. एंड प्रॉब्लम क्या इशू फेस कर रहे हैं कि भाई जो एंड्रॉइड के ऊपर जो है ना वो शायद जॉब्स नहीं मिल रही, या फ्लटर के ऊपर जॉब्स नहीं मिल रही. फराज कैन यू प्लीज म्यूट. ओके, सो अब क्या प्रॉब्लम है, ये सिर्फ फर्क है कॉन्फिडेंस का. जब मैं किसी से बात कर रहा हूं, मैंने उनसे बात करा, आई जज्ड कि भाई उसको एंड्रॉइड के ऊपर तो बहुत अच्छा काम आता है, ठीक है, एंड वो देखना चाह रही है कि भाई इंडस्ट्री के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है जिसकी तरफ वो अप्लाई करे. सो दैट्स जस्ट दैट कॉन्फिडेंस लेवल वो नहीं था जिसकी वजह से वो शायद जॉब सिक्योर नहीं कर पा रही थी. लेकिन बट वंस यू गेट दैट बूस्ट, वंस यू रियलाइज कि भाई जो मुझे आता है ना वो काफी है, ठीक है, सो फील दैट थिंग इन योरसेल्फ, टॉक कॉन्फिडेंटली. एंड जो रिक्रूटर है उसको कोई बॉस ना समझो, ठीक है. थिंक दैट रिक्रूटर एज जो भी इंटरव्यूअर है आपका, उसको अपने दोस्त की तरह समझो. या सिर्फ समझो, दोस्त बना मत लो, लेकिन हाँ उसको एक दोस्त की तरह बात करो. एंड देन इट विल क्रिएट दैट इंप्रेशन कि यार दिस गाय इज फ्रेंडली, he has that spark to merge into that team. तो वो टीम स्पिरिट नजर आएगा. अपने इंटरव्यूअर को जो है ना वो वाकई बॉस नहीं समझो, कोई वो तलवार लेके नहीं खड़ा हुआ सर के ऊपर, स्ट्रेस में नहीं जाना आपने, अपने दोस्त समझो. इट्स जस्ट लाइक टॉकिंग टू अ कोलीग. That's how you should be talking to an interviewer. So don't worry about anything कि यार मुझे ये जॉब चाहिए वरना पता नहीं क्या हो जाएगा. डोंट थिंक लाइक दैट. अपने आप पे भरोसा रखो, सामने वाले को अपना दोस्त समझो, एंड देन उससे बात करो, ठीक है. इनफैक्ट मैंने अपने जो मैंने इंटरव्यूज लिए अक्सर, दैट हैज यूजुअली एंडेड विद कैरियर काउंसलिंग, ठीक है. क्यों? क्योंकि सामने वाले ने अपने आप को इतना मुझे एक फ्रेंडली माहौल सा क्रिएट किया. सो आई हैड नो इश्यूज इन गाइडिंग हिम टुवर्ड्स हिज कैरियर एंड मे बी इवन गिविंग हिम दैट जॉब. एंड कुछ को मैंने ऑब्वियसली बात है, आई डोंट एक्सेप्ट एवरी एप्लीकेशन ऑन माय पोर्टल. तो अगर कोई ऐसे भी कैंडिडेट्स काफी सारे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इस बिहेवियर की वजह से, सिंस दे क्रिएटेड दैट कॉन्फिडेंस एंड वो फ्रेंडली माहौल जो उन्होंने क्रिएट किया, उसकी वजह से I ended up guiding them towards their career, and alhamdulillah they secured jobs in later interviews with some other places where I could reference them. Yes.
Okay, so Laiba Shahid is asking कि उन स्टूडेंट्स के बारे में क्या जो कि आर मोर इनटू डिजाइनिंग साइड. इस पे हमने तकरीबन 50% इन चीज़ों को कवर कर लिया है, लेकिन फिर भी इसका प्रिसाइज सा आंसर कि व्हाट अबाउट द स्टूडेंट्स हु आर मोर ऑन टू द into the designing side than that of the development. What should be the role best for them in tech industry? अब डिजाइनिंग के एतबार से अगर टेक इंडस्ट्री में डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं तो वो तकरीबन 2 से 4 सेक्शंस हैं जहां पे जॉब सिक्योर होती हैं डिजाइनर्स की. नंबर 1 के ऊपर सॉरी नंबर 1 के ऊपर यूआई डिजाइनर्स हैं. What do I mean by with UI designers is basically web designing, जो templates बना रहे हैं, जो design को, जो idea को properly जो है ना वो design के अंदर convey कर पाते हैं. That is one UI designer. The second one is with the UX designer, user experience. तो there is a difference between UI and user experience designers. उसके बाद जो आती है वो graphic designing आती है, जो कि लोग थोड़ा सा इसको merge कर लेते हैं कि यार शायद UI designer और graphic designer शायद वो एक ही चीज है. भाई जमीन आसमान का फर्क है दोनों में. ठीक है, एक जो है वो एप्लीकेशंस की तरफ और एप्लीकेशंस वो डिजाइन कर रहा है, और दूसरा जो ग्राफिक डिजाइनर दैट्स मोर टूवर्ड्स सोशल मीडिया पोस्ट्स एंड प्रेजेंटेशंस एंड थिंग्स लाइक दैट. तो ये वाले जो डिजाइनर्स हैं, so now I have explained like 3, the UI, the UX, and now the third one is the graphic designers. तो तीनों के अलग स्किल सेट्स हैं. UI UX वाले शायद एक बंदा हो सकता है, वो एक ही स्किल सेट में कभी कभार काउंट हो जाता है, दो इट इज जनरली डिफरेंट टर्म्स एंड डिफरेंट डिजाइनर्स ओवर देयर. अच्छा, डिजाइनिंग के बाद एक चीज एक एड ऑन है. अगर वो ग्राफिक डिजाइनर या फिर वो यूजर इंटरफेस डिजाइनर जो है उसको अपने डिजाइन को कोड में भी कन्वर्ट करना अगर आता है, दिस इज लाइक अ ह्यूज पॉइंट. एंड ये कोई मुश्किल काम नहीं है, especially for Flutter designers, mobile app designers, and for the web designers. Web designing के अंदर आप अपने कोड को HTML में कन्वर्ट अगर कर सकते हो, this is a very huge point. I have been working with those designers who are developers also, who can convert their design, that Figma or Photoshop design. It's not, Photoshop is not generally used for user interfaces, so Figma is generally used, and Adobe XD. तो अगर वो अपना डिजाइन HTML के अंदर कन्वर्ट कर सकता है विद प्रॉपर जो बटन क्लिक्स एंड ड्रॉप डाउन्स, ये बहुत सिंपल सा एड ऑन स्किल है. अगर एक डिजाइनर अपने स्किल सेट को इनहेंस करने के लिए, अपनी जॉब को मजीद सिक्योर करने के लिए, या फिर जल्दी ग्रोथ के लिए, अगर वो अपने स्किल्स के अंदर ये चीज ऐड करता है कि वो HTML में कन्वर्ट करना जानता है, और बहुत अच्छी बात है अगर वो रिएक्ट में कन्वर्ट कर सकता है. ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है अपने डिजाइन को कन्वर्ट करना. इट्स बेसिकली यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन HTML CSS. अगर ये दो चीजों पे फोकस कर लेते हो, दिस इज वेरी इजी. आप मेरे ख्याल से हफ्ता 10 दिन 15 दिन के अंदर आप अपने ये स्किल सेट को पॉलिश कर सकते हो. डिजाइनिंग के अंदर ये बेसिकली जो कलर्स हैं, जो आप नॉर्मली फिग्मा के ऊपर या फिर एडोबी XD के ऊपर, जो फोटोशॉप के ऊपर, इलस्ट्रेटर के ऊपर, आप हर चीज को कलर्स में आप जैसे वो सेट करते हो पैलेट के ऊपर से, इसी तरीके से CSS के अंदर भी आप जो है ना बहुत सी चीजें, ठीक है वो कोड है, एक लैंग्वेज है जिसमें आपने लिखना है, बट आप अपने स्किल्स को यूज करते हुए आप अपने डिजाइन को कोड में कन्वर्ट कर सकते हो. नाउ दिस इज एप्लीकेबल फॉर Flutter also, for the web designers, and graphic designing is entirely different. उसका कोड से ताल्लुक इतना नहीं होता. लेकिन हाँ, ये जो UI वाले लोग हैं, मोबाइल ऐप को अगर कोई डिजाइन करते हैं, दिस गाय ओवर है राशिद वसान, अगर मैं इसी की मिसाल दूं, इसको अगर कोई डिजाइन दे दो, वो फ्लटर के ऊपर कन्वर्ट करना, इट्स अ वेरी पीस ऑफ केक फॉर हिम. बट द स्किल सेट ओवर हियर व्हिच आई विल मेंशन इज दैट डिजाइन मैंने दिया, ठीक है, तो आपने फ्लटर पे कन्वर्ट कर लिया. लेकिन ये राशिद की मिसाल दे रहा हूं मैं यहाँ पे, कि इसको अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ वो दिया है, क्या बोलते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट दिया है, दिस इज द रिक्वायरमेंट, तो अब उस बंदे ने अपने उस ऐप को डिजाइन भी किया
और डायरेक्टली फ्लटर के ऊपर किया। फ्लटर का एक फायदा ये है कि भाई उसके अंदर आपकी जो डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट टाइम जो है ना वो बहुत कम है। तो आपका जो माइंडसेट है कि ऐप का लुक एंड फील ये होना चाहिए, यू कैन डायरेक्टली पुट इन दोज विजेट्स एंड यू गेट दैट थिंग डन। तो ये चीज जो है ना बहुत फायदेमंद है किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी इंडस्ट्री के लिए, कि भाई इसको सिर्फ एक वो बता दो कि भाई ये मिसाल के तौर पे ई कॉमर्स ऐप बनानी है, एंड देन आपने जो है ना डायरेक्टली उसको कोड करके बना दिया, या फिर आपने डिजाइन करके देन उसको कोड में कन्वर्ट कर लिया। ये स्किल्स, दिस इज वैल्यूएबल। ठीक है, हाउ दिस इज वैल्यूएबल, मैं इसके ऊपर एक बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये कैसे वैल्यूएबल है। ये वैल्यूएबल ऐसे है कि भाई आपने जब आपको डिजाइन भी आया और आपको कोड भी आता है, तो आपने जो है वो एक डिजाइनर और एक डेवलपर दोनों की जॉब्स की जगह पे आपने अपने आप को सिक्योर किया। तो दिस इज एन एड ऑन फॉर अ कंपनी। अगर मैं एज ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अगर मुझे किसी एक डेवलपर को भी सैलरी देनी है, एक डिजाइनर को भी सैलरी देनी है, निस्बतन इसके कि एक ऐसा बंदा जिसको दोनों काम बहुत अच्छे आते हैं एंड पैशनेटली आते हैं, तो मैं ऑब्वियसली बात है इस थर्ड वाले बंदे, दूसरे तीसरे बंदे को एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है ना कि मुझे दो बंदे हायर नहीं करने अलग अलग, एक ही बंदे ने दोनों चीजें करके दे दी मुझे। So this is how there are places for designers. I hope Laiba, I have answered your question. Okay, साद भाई एक और काफी सिंपल सा क्वेश्चन है कि from Fahad is going for an internship is better before graduation or after? Because graduation से पहले हमें internship को hunt करना चाहिए या बाद में? हमेशा इंटर्नशिप को ग्रेजुएशन से पहले हंट करो। ठीक है, उसके पीछे वजह यह है कि जब आप ग्रेजुएशन के बाद आते हो तो एक गफीर तादाद के अंदर वो कैंडिडेट्स मौजूद हैं जो परमानेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ईदर दे हैव एन इंटर्नशिप एक्सपीरियंस और दे हैव अ वेरी वेल वर्किंग FYP, जो उस एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर वो परमानेंट जॉब्स पे अप्लाई कर रहे हैं आफ्टर द ग्रेजुएशन। तो मेरा सजेशन ये है कि इंटर्नशिप हमेशा ग्रेजुएशन से पहले अप्लाई करो, एंड इट डज नॉट मैटर कि आप कौन से साल के अंदर हो। ठीक है, अगर आप सेकेंड ईयर के हो, आप थर्ड ईयर के हो, या फिर आप फोर्थ ईयर के हो। मेरे पास जो मैंने अपनी कंपनी स्टैब्लिश की थी आज से 2 साल पहले, जिसको मैंने अब हैंड ओवर कर दिया, तो उस कंपनी के अंदर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट ज्यादा थे। ठीक है, जो स्टार्ट किया था वो सेकंड ईयर के स्टूडेंट से ही मैंने स्टार्ट किया था, एंड दे वर नॉट ऑन इंटर्नशिप। आउट आई गेस आई टुक देयर वाज अ टीम ऑफ अराउंड 12 डेवलपर्स, जिसके अंदर से 4 जो है वो तो सीनियर थे, ग्रेजुएट्स थे, लेकिन जो बाकी जो लड़के थे और लड़कियां भी थी उनमें, तो उसके अंदर कुछ की जो है वो इंटर्नशिप से स्टार्ट हुआ था, जस्ट 3 months ऑफ इंटर्नशिप एंड दे वर प्रमोटेड टू अ परमानेंट रोल। और बाकी जो है वो मैंने डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के लड़कों को डायरेक्टली परमानेंट रोल्स के ऊपर ही हायर करा था हमने वहां पे। तो इट डज नॉट मैटर आप कौन से साल के हो, इफ यू कैन सेल दैट थिंग टू मी, योर स्किल सेट टू मी, just present that thing in yourself, तो यार डेफिनेटली रिक्रूटर्स ले लेते हैं। वी डू नॉट केयर के भाई ये ग्रेजुएट है भी या नहीं है, एज लॉन्ग एज हमारा काम हो रहा है, तो इट डज नॉट मैटर कि आप ग्रेजुएट हो या ना हो। इंटर्नशिप भाई पहले अप्लाई करो, ताकि ग्रेजुएशन के बाद आप अप्लाई करने में आपको ये प्रॉब्लम फेस ना करो कि भाई बाकी सारा पूरा जो मार्केट है वो परमानेंट जॉब्स पे अप्लाई कर रही है और आप इंटर्नशिप पे अप्लाई कर रहे हो, तो you will fall back actually। तो स्टार्ट पहले हंटिंग पहले से स्टार्ट करो, ताकि अगर मिल जाए। और इंटर्नशिप पे एक चीज याद रखना, वो परमानेंट रोल नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यू आर नॉट लायबल टू कमिट टू 9 hours ऑफ योर सर्विस इन अ कंपनी। इंटर्नशिप जब कोई ऑफर कर रहा है तो उस, और ये भी वो जानता है कि एक बंदा ग्रेजुएट नहीं है, वो यूनिवर्सिटी जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि, और वो इंटर्नशिप भी ऑफर कर रहा है, वो आपको इंटर्नशिप पे ले भी रहा है, तो इसका मतलब ये है कि भाई यू हैव दैट एम्पल टाइम टू फोकस ऑन योर स्टडीज एंड ऑल्सो वर्क फॉर देम। ठीक है, इंटर्नशिप के ऊपर जनरली सिखाया जा रहा होता है, एंड ये मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर बता दूं, दिस इज माई माइंड सेट। इंटर्नशिप हो या वो जॉब हो, भाई वो स्कूल नहीं है,
वो यूनिवर्सिटी नहीं है, वो ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। अगर ट्रेनिंग सेंटर होता तो भाई ट्रेनिंग सेंटर के नाम से उसको चलाया जाता ना। तो कंपनी आपको सिर्फ सिखाने के लिए कभी भी इंटर्नशिप पे नहीं ले रही होती। वो जनरली ये देखती है इंटर्नशिप के अंदर कि क्या इस कैंडिडेट के अंदर वो एलिमेंट मौजूद है कि यार इसको मैं बस उंगली पकड़ा दूं या फिर इसको एक डायरेक्शन दे दूं तो वो हमें सक्सेसफुली हमें सर्व करने लग जाएगा। तो ये चीज आपने एक्चुअली असल में इंटर्नशिप में प्रूव करनी होती है, एंड दैट्स व्हाई इट्स ओनली ऑफ 3 months. 3 months इज एम्पल टाइम टू प्रूव योरसेल्फ इन अ कंपनी। तो इफ यू कैन प्रूव योरसेल्फ अलोंग विद योर स्टडीज, दिस इज सोने पे सुहागा है भाई। है कि अगर कोई कैंडिडेट जो है ना पढ़ाई के साथ साथ अपनी कंपनी को अपनी जॉब के ऊपर जो है ना वो अपने डिलीवरेबल्स दे रहा होता है, पढ़ भी रहा होता है, यानी अपनी पढ़ाई तो कर रहा है साथ में, लेकिन वो जॉब के बारे में भी प्रोफेशनली वो चीज़ों को स्टडी भी कर रहा है, एंड देन उसको ग्रैब भी कर रहा है अपने सीनियर्स से, एंड देन उस नॉलेज के बेस के ऊपर वो डिलीवर भी कर पा रहा है। यार इससे अच्छी और कोई भी चीज़ नहीं होती फॉर एनी कंपनी। Okay, so we have got to be honest, lots of questions. So तो आई थोड़ा थिंक सा प्रिसाइसली चलना होगा हमें अब। अच्छा, मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पे आई कैन गारंटी यू हमारे पास 60 पार्टिसिपेंट्स हैं, उनमें से तकरीबन 40 को पता नहीं होगा कि व्हाट एक्चुअली इज ब्लॉकचेन एंड हाउ डज इट वर्क। तो थोड़ा सा इस चीज के बारे में बता दें, ब्लॉकचेन का फ्यूचर आप कैसे देख रहे हैं पाकिस्तानी आईटी इंडस्ट्री में? अच्छा, पाकिस्तान का एक छोटा सा प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा देर से अडॉप्ट करता है। ठीक है, करंट सिचुएशन के ऊपर जो जंग है वो अभी तक ये चल रही है कि रिएक्ट नेटिव के ऊपर जाए या फ्लटर के ऊपर जाए। ठीक है, तो ब्लॉकचेन इज स्टिल फार इन पाकिस्तानी, अकॉर्डिंग टू मी, आई विल बी वेरी क्लियर ऑन दैट। अच्छा, मैं क्यों ये कह रहा हूं कि टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन या फिर कोई न्यू टेक्नोलॉजी जो आ रही है वो इतने जल्दी अडॉप्ट नहीं होती पाकिस्तान के अंदर। अगर एक या दो कंपनीज किसी न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, दैट डज नॉट मीन दैट के जो है ना वो अब फ्यूचर बन गया है इस टेक्नोलॉजी का पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, देयर इज अ कंपनी विच इज मेड फॉर जस्ट डेटा साइंटिस्ट्स। ठीक है, तो अब वो जो डेटा साइंटिस्ट वाली जो कंपनी है उसके पास भी लोग नहीं है, उसने काम शुरू कर दिया पाकिस्तान के अंदर। ही वाज वन ऑफ द पायनियर्स, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट टू टेक एनी नेम। सो अब ब्लॉकचेन की अगर बात कर रहे हो, ब्लॉकचेन का स्कोप, उसकी स्ट्रेंथ वो बहुत है। ठीक है, आप डिसेंट्रलाइज कर रहे हो बहुत सी चीजों को जो कि सेंट्रल सर्वर्स के ऊपर चल रही होती है, अब वो ब्लॉकचेन के डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के ऊपर चल रही है। ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ अपनी जगह बहुत है, टेक्नोलॉजी बहुत प्रॉमिसिंग है, बट आई सी दैट पाकिस्तानी जो इंडस्ट्री है वो इसको इतने जल्दी अडॉप्ट नहीं करती। ये एक बहुत पुराना माइंडसेट है। कितनी कंपनीज हुए हैं जो बहुत रिसेंटली जो है वो फॉक्स प्रो और कोबॉल से निकलकर अब वो डॉटनेट की तरफ आई हैं। ठीक है, सो दिस माइंडसेट, ये जो प्रॉब्लम है, क्योंकि जो टेक ओनर, जो इंडस्ट्री ओनर्स हैं वो बहुत पुराने माइंडसेट के साथ चल रहे हैं, एंड दे आर लाइक कि भाई बिजनेस चल रहा है, देन लेट्स नॉट डिस्टर्ब इट। ठीक है, लेट्स कीप मूविंग फॉरवर्ड अलोंग हाउ थिंग्स आर मूविंग। ठीक है, तो ब्लॉकचेन की जो एप्लीकेशंस हैं विद पाकिस्तान, विद इन द पाकिस्तान इंडस्ट्री, दिस इज समथिंग एल्स, ये बहुत स्लो चल रही है। लेकिन अगर मैं ये बात करूं कि ब्लॉकचेन के ऊपर पाकिस्तान के अंदर काम होता है या नहीं होता, तो मैं बोलूंगा भाई काम होता है। वो कैसे काम होता है कि वो कंपनीज जो मेनली अब्रॉड से प्रोजेक्ट्स ले रही हैं, यहाँ पे जो प्रोडक्ट जिनका बना हुआ है ब्लॉकचेन के ऊपर, एंड जनरली वो सर्व बाहर कर रही हैं, तो वहां पर ऑब्वियसली बात है ब्लॉकचेन के डेवलपर्स की जरूरत पड़ती भी है, एंड वहां पे ब्लॉकचेन पे काम होता भी है। Okay, so there's a question from Samar Fatma. Sir, as you said that recruiters look for projects more than CGPA. So what kind of projects they look for? I mean, semester, personal projects present on GitHub or Gitbucket. Even we have GitLab as well. So, or freelancing projects. Any type of projects. ठीक है, मैं जो हूँ वो सिर्फ FIP को नहीं, मैं ठीक है उसकी CV देख के मैं सबसे पहले देखता हूँ FIP पे क्या बनाया उसने, एंड देन क्वेश्चन भी FIP के ऊपर कर रहा होता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं देख रहा होता उसने क्या बनाया, मैं जनरली ये देख रहा होता हूँ उसने
क्या काम किया था, क्योंकि एफआईपी के अंदर जनरली 2 से 5 लोग होते हैं किसी भी एफआईपी के प्रोजेक्ट के अंदर, एटलीस्ट 2 एंड आई थिंक मैक्सिमम 5, एक जनरल रूल है आई थिंक यूनिवर्सिटीज के अंदर, आई एम नॉट श्योर, मेरे पास तो यही था, हम लोग सिर्फ 2 लोग थे अपने एफआईपी में। तो मेरा जो मेन फोकस होता है कि उस कैंडिडेट ने उस प्रोजेक्ट के अंदर क्या रोल प्ले किया। अगर उसने रोल सिर्फ ये प्ले किया है कि उसने सिर्फ प्रेजेंटेशन दिया, उसको कुछ पता है उसके बारे में, तो ऑब्वियसली बात है कि दैट्स नॉट समथिंग ऑफ माय इंटरेस्ट। लेकिन अगर उसने एक क्रूशियल रोल प्ले किया है, देन वो आप ब्लफ नहीं कर सकते एक्चुअली इस वाले सवाल को, कि अगर कोई आपसे ये पूछता है कि आपके एफआईपी के अंदर आपका रोल क्या था और आप ये बोलते हो कि भाई मैंने इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐप मैंने बनाई थी, देन यू ऑलरेडी हैव स्क्वीज्ड डाउन दोस क्वेश्चंस, कि अब मैं उस ऐप से रिलेटेड सवाल करूंगा टू अंडरस्टैंड कि भाई बंदा जो कह रहा है क्या वो वाकई उसने किया है या नहीं किया। तो इट कैन बी एनी टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स, एफआईपी हो, चाहे वो फ्रीलांस के प्रोजेक्ट्स हो, चाहे वो एनीथिंग, ठीक है, बस प्रोजेक्ट्स अगर होते देन, एंड अगर उसमें क्रूशियल रोल उसने प्ले किया होता है, दैट्स मच बेटर फॉर एनी फ्रेश ग्रेजुएट। Question from Abdul Aziz Khoso: Is certification in any technology is important in order to get hired? यस भाई, क्यों, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, अगर आप क्या बोलते हैं, मिसाल के तौर पे फ्लटर की आई डोंट थिंक कि कोई अब तक सर्टिफिकेशन आई है, नहीं, आई एम नॉट श्योर, लेकिन सर्टिफिकेशंस हेल्प आउट बहुत करती हैं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट की एक सर्टिफिकेशन थी फॉर सी शार्प, and there was another certification for HTML, CSS, JavaScript. That was, I think, Web Fundamentals 101. So ये certifications अगर किसी के पास होती हैं, एक fresh graduate के पास, तो generally उसका preference ज़्यादा होती है। इसके पीछे 2 reasons हैं। पहला रीजन ये है कि वो सर्टिफिकेट ये प्रूफ करता है कि इस कैंडिडेट को वो चीज आती है एंड इसीलिए उसने वो सर्टिफिकेट उसको मिला। तो एक चीज में हम लोग एज अ टेक्निकल रिक्रूटर जो है ना, वो हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि भाई इस बंदे को ये काम तो आता है। सेकंड पॉइंट ये होता है कि सर्टिफाइड लोगों का किसी भी टीम के अंदर होना, किसी कंपनी के अंदर होना, दैट गिव्स देम एन एज ओवर सिक्योरिंग मोर बिजनेस इन द इंडस्ट्री। तो यानी कि मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोलूं तो मेरे लिए पिच करना बहुत आसान है कि भाई मेरे पास जो टीम है, दे आर कंप्लीट टीम ऑफ गूगल सर्टिफाइड डेवलपर्स हो रहे हैं। तो दिस गिव्स यू एन एज ओवर एक ऐसी कंपनी जो कि बोलती है कि हमें काम आता है बट वी डोंट हैव एनी सर्टिफाइड पीपल इन दिस टेक्नोलॉजी। तो ये डिफरेंस क्रिएट हो जाता है विद इन बिजनेस। एंड आपके लेवल पे जो चीज एज देती है आपको कि वो ये कि यू हैव अ सर्टिफिकेट टू प्रूव योर स्किल्स। आई डू नॉट नीड टू आस्क क्वेश्चंस बिकॉज that certificate provider has already asked those questions to give you that certificate that yes, this guy is certified from Microsoft and yes, he knows this technology. तो भाई मैं कौन होता हूँ फिर सवाल करने के लिए? We already know that you know this thing and then we'll add on extending that certificate capabilities. Akash ka question है, sir, how to work on skills in consistency, because sometimes our mind changes and we feel bored. So what we have to do and how to get rid of this problem. मतलब ऐसा होता है कि हम बोर हो जाते हैं किसी टेक्नोलॉजी से, फिर कहते हैं कि अभी स्विच करने का टाइम आ गया है। आई गेस यही क्वेश्चन है। अच्छा देखो, स्विच करने से पहले इसमें कोई हार्म नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप अपनी टेक्नोलॉजी स्विच कर लेते हो, ठीक है, क्योंकि आप सिर्फ बोर हो गए। भाई मैं भी बोर हो जाता हूँ टेक्नोलॉजी के ऊपर से, मैं .NET के ऊपर काम कर करके बोर हो गया था एंड आई वाज लाइक भाई बस बहुत हो गया .NET, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, मैं Node.js पे चला गया, देन मैं Node.js से बोर हो गया, मैंने बोला पाइथन पे चले जाए, पाइथन पे मैं फौरन ही बोर हो गया था विद इन अ फ्यू मंथ्स, एंड उसके बाद मैंने बोला Node.js पे वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज एक नॉर्मल सी बात है, इसमें ऐसी कोई चीज, इसमें कोई मुजायका नहीं है ये इसको एक्सेप्ट करने में कि यू नीड अ चेंज, लेकिन देयर इज अ टाइम फॉर चेंजिंग। अगर आप अपने कैरियर के बिल्कुल स्टार्ट के अंदर हो और आज आपने एक टेक्नोलॉजी, मिसाल के तौर पे आज आप सेकंड ईयर के ग्रेजुएट, सेकंड ईयर में अपनी यूनिवर्सिटी के, और आज आपने एक लैंग्वेज ऑफ चॉइस, मैं लैंग्वेज के ऊपर अभी फोकस कर रहा हूँ, मैं फ्रेमवर्क्स के ऊपर नहीं बात कर रहा। अगर आज आपकी टेक्नोलॉजी लैंग्वेज जो है वो पाइथन है और आपने पाइथन के ऊपर बहुत सी चीजें सीखी, ठीक है, लेकिन आपने 2 महीने के अंदर आपने बोला यार पाइथन इज बोरिंग, आई जस्ट स्विच। ठीक है, अगर आपने ये इनकंसिस्टेंसी रखी अपने, आपका माइंडसेट अगर ये इतना इनकंसिस्टेंट रहा, तो एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू विल बी ग्रेजुएटिंग, तो आपको शायद कुछ भी नहीं आता होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने पाइथन भी जो है ना वो
ऊपर से देख ली, चंद टॉपिक्स देख लिए और आप आगे बढ़ गए। फिर आपने बोला कि चलो मैं नोड जेएस करूंगा, आपने नोड जेएस भी थोड़ा सा देख लिया, आप आगे बढ़ गए। एंड जब मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ तो मुझे ये नजर आएगा कि इस बंदे को आता तो पता सब कुछ है लेकिन आता कुछ भी नहीं है इसको फिर भी। ठीक है, तो एक टाइम फ्रेम है किसी भी टेक्नोलॉजी से स्विच करने के लिए। ग्रेजुएशन जब तक नहीं हुई भी, एज लॉन्ग एज यू आर स्टूडेंट्स, उसमें एक टाइम फ्रेम अलग है। एंड ग्रेजुएशन होने के बाद जब आप एक प्रोफेशनली किसी कंपनी के अंदर किसी प्रोफेशनली काम कर रहे हो, चाहे वो अपना बिजनेस रन कर रहे हो, चाहे वो जॉब पे जा रहे हो, देयर इज अ टाइम टू स्विच अ टेक्नोलॉजी। ठीक है, as long as you are not a graduate, you have not stepped into a professional industry yet, तो उसके अंदर मेरा सजेशन ये होगा कि जो भी लैंग्वेज, जो भी फ्रेमवर्क या जो भी टेक्नोलॉजी ऑप्ट करो, एटलीस्ट उसके तमाम पैराडाइम्स को प्रॉपरली एक्सप्लोर करो। और एक्सप्लोर करने से मुराद मेरा ये है कि अपने स्किल, जो कुछ आपने सीखा, एटलीस्ट उसको शोकेस करो। ठीक है, शोकेस से कैसे कर सकते हो आप? एटलीस्ट पब्लिक गिटहब रिपोजिटरीज बनाओ, कोई वर्किंग एप्लीकेशन कंप्लीट बनाओ। अगर पाइथन के ऊपर ही काम करना है तो एटलीस्ट गो विद जेंगो फ्रेमवर्क, मेक समथिंग आउट ऑफ ऑन द वेब एंड एटलीस्ट शोकेस दैट ऑन द ऑन गिटहब पेजेस के ऊपर होस्ट करो, कुछ भी करो, एटलीस्ट उसको शोकेस करो। एंड दिस विल ओनली टेक यू अराउंड 2 to 3 months टू एक्सप्लोर दैट होल टेक्नोलॉजी, दैट फ्रेमवर्क और दैट लैंग्वेज। एंड उसके बाद जो है आप स्विच करो दूसरी टेक्नोलॉजी के ऊपर। लेकिन अगर आप हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर बोलते हो कि यार नहीं यार ये दिस इज नॉट माय थिंग, तो ये एटीट्यूड अगर रखा आपने तो शायद आप हर टेक्नोलॉजी के ऊपर आप यही एटीट्यूड रखोगे कि यार दिस इज नॉट माय थिंग, यार चलो दूसरा चेंज करो, कुछ और किसी और पे जाते हैं, आज मैं ये सीखता हूँ। ऐसा नहीं करो। ठीक है, एटलीस्ट अब जो सीख रहे हो उसको प्रॉपरली कंप्लीट सीख कर उसको शोकेस करो एंड देन स्विच, ताकि कल को जब ग्रेजुएशन होने के बाद जब आप जाओगे तो एटलीस्ट आप बोल सकते हो कि भाई मुझे पाइथन पूरी आती है, ये मेरी CLI टूल मैंने बनाया था एंड इसको आप अभी रन करो पिप के ऊपर एंड आप देखो ये सारी चीजें इसके ऊपर ये चलती हैं। नोड जेएस पे करते हो तो एटलीस्ट नोड जेएस की स्किल सेट को शो करो, वेब के ऊपर करते हैं लोग, वेब को शो करो। ठीक है, 2 से 3 महीने लगते हैं अपनी चीजों को पॉलिश करने में, इतने ज्यादा टाइम नहीं लगता इस चीज में, और आप लोगों के पास बहुत टाइम होगा। अलॉन्ग विद योर स्टडीज आप लोग आराम से कर सकते हो ये चीजें। Okay, there was a question from Zed, जो कि हमने I guess clear कर दिया है. How much chance of getting hired is boosted by making some portfolio projects before applying for first internship or job? तो I guess ये तो हमने clear कर दिया था. मैं इसको बिल्कुल 30 seconds के अंदर एक्सप्लेन कर देता हूँ. Rashid secured his first job just by showcasing his only one project which he made out of hobby, I believe. So showcase is very important for securing. It gives you an edge over other developers. Okay, in your experience, where do people lack in interviews? Nice question. अच्छा, इसके बारे में जो लैकनेस होती है बंदों में, ये मेरे एक्सपीरियंस में वो अपने आप को सही तरीके से सेल नहीं कर पाते. ठीक है, यानी कि वो मुझे कन्विंस नहीं कर पाते. एज ए रिक्रूटर मुझे कन्विंस नहीं कर पाए. ठीक है, एंड ये डिसीजन जो है ना वो शुरू के 15 मिनट में हो जाता है कि कैंडिडेट ने अपने आप को अगर मुझे कन्विंस कर लिया टू टेक हिम ऑन दैट जॉब, सो दैट इज इनफ फॉर मी. तो ये जो कन्विंसिंग पावर है ना, ये थोड़ी सी लैक करते हैं काफी कैंडिडेट्स, और दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर कॉन्फिडेंस एक्चुअली. तो अगर वो कॉन्फिडेंट नहीं होते इतने ज्यादा, एक जुमला मैं बताता हूँ वो आप लोग शायद रिलेट कर सकोगे, कि मैंने अगर सवाल किया कि आपको मोबाइल डेवलपमेंट में जाना है, तो वो बोलते हैं जी मुझे मोबाइल डेवलपमेंट में जाना है. ठीक है, अच्छा कौन सी लैंग्वेज पे आप काम करती हो या काम करते हो? तो मैं जावा पे भी काम कर लेता हूँ और मुझे रिएक्ट नेटिव पे भी आता है. ठीक है, अब ये कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया इसने. जावा पे आता है, दैट मीन्स ही इज गोइंग टूवर्ड्स, ही वांट्स टू मूव टूवर्ड्स एंड्रॉइड नेटिव, और वो फिर साथ में बोल रहा है मुझे रिएक्ट नेटिव पे भी काम आता है. तो मेरा माइंडसेट क्या कहता है, वो ये इंप्रेशन ये क्रिएट करता है, इस बंदे को खुद नहीं पता कि इसको क्या करना है. ठीक है, तो कीप दैट कंसिस्टेंसी के यार जो चीज जिस पे अप्लाई कर रहे हो या जिस चीज के लिए आना चाह रहे हो या जो चीज अपनी जिंदगी में करना चाहते हो, तो वो एक चीज बोलो. ठीक है, पहले खुद डिसाइड करो कि क्या करना है. ठीक है, अगर आपने सिर्फ एंड्रॉइड नेटिव पे जाना है, देन जस्ट कोड एंड्रॉइड नेटिव. ठीक है, और अगर आपको रिएक्ट नेटिव हाइब्रिड प्लेटफॉर्म्स की तरफ जाना है, तो देन कोड हाइब्रिड प्लेटफॉर्म्स.
ठीक है। एंड हाइब्रिड के अंदर भी कोई एक चीज कोट करो। जब आप मुझे वैरायटी दे देते हो ना सामने, तो फिर मैं बोलता हूँ इस बंदे को खुद नहीं पता कि इसने क्या करना है। ठीक है, इसको खुद भी ये इसने वो किया हुआ है कि 4 महीने इसने एक चीज करी, 4 महीने एक चीज करी, 4 महीने एक चीज करी, तीनों में से कुछ भी नहीं आती इसको। तो ये कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपको, मैंने जो इस कन्वर्सेशन के स्टार्ट में बोला, अपने स्किल सेट्स को जो है ना वो मार्क डाउन करो, एंड देन उसके बाद चूज करो कि आपने किस चीज के ऊपर बात करनी है, एंड देन वो चीज कोट करो कि सिर्फ मुझे ये बात करनी है। तो आपका जुमला जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और अब जब मैं आपसे पूछूंगा कि मोबाइल की में कौन सी टेक्नोलॉजी आप प्रेफर करते हो, तो आप उस पर बोलोगे कि मेरा एक्सपीरियंस जो है वो जावा, रिएक्ट नेटिव एंड फ्लटर के ऊपर रहा है, बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट विद जावा एंड एंड्रॉइड नेटिव। वो मेरा पैशन है। एंड आफ्टर एक्सप्लोरिंग द अदर टेक्नोलॉजीज, मेरा ख्याल है कि भाई आई बिलीव दैट आई वांट टू मूव टूवर्ड्स एंड्रॉइड नेटिव rather than an hybrid platform। तो आपका जवाब चेंज हो जाता है उसमें। तो फिर मैं भी मुझे कंफर्टेबल हो जाता हूँ कि भाई ठीक है, इस बंदे को पता है किसने क्या करना है। तो दिस इज हाउ थिंग्स गो। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट मैं चाहता हूँ कि वी शुड रैप अराउंड 9 PM सही रहेगा। आई हैव नो इश्यूज एज लॉन्ग एज यू हैव नो इश्यूज, बिकॉज ये ऐसे सेशंस रोज नहीं होते। एंड लेट मी अनाउंस वन थिंग कि आफ्टर 15 मिनट्स एट 8:45 हमारी जो टीम है वो एक फॉर्म की लिंक सेंड करेगी, फीडबैक एंड अटेंडेंस फॉर्म। तो आपने वो फिल करना है, बिकॉज यू गाइज विल बी गिवन सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन। तो मेक श्योर टू बी विद अस। और एक और यहाँ पे क्वेश्चन उजैर हुसैन की तरफ से, Sir, what is the motivation to the new students in tech field? Because we are feeling fear and we are confused in some areas. Can you tell us path or how we start our journey and try to succeed? पॉइंट वाइज बता देता हूँ। जनरली ह्यूमन साइकोलॉजी जो है ना, वो पॉइंट्स के अंदर जब कोई चीज बताई जाती है ना, तो वो उसको बहुत अच्छी समझती है। पहला पॉइंट, अपने आप डिसाइड करो कि क्या करना है, इंटरेस्ट क्या चीज है। वेब के ऊपर जाना है, मैं टेक रिलेटेड बात कर रहा हूँ, मैं जनरल रिलेटेड बात नहीं कर रहा, मैं अभी सिर्फ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर बात कर रहा हूँ। वेब डेवलपमेंट में जाना है, मोबाइल डेवलपमेंट में जाना है, आईटी सपोर्ट में जाना है। आईटी सपोर्ट इज अ वेरी ह्यूज इंडस्ट्री, दो इट इज रिगार्डेड वेरी लेस, बट दे प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। नेटवर्किंग की तरफ जाना है। पहले उन चीजों को सॉर्ट आउट कर लो कि यार मैंने करना क्या अपनी जिंदगी में। उसको सॉर्ट आउट करने के बाद उसमें ये देखो कि सबसे टॉप ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी क्या चीज है उसमें। ठीक है, अगर आप वेब में जा रहे हो तो यू विल बी सीइंग के रिएक्ट एंड नेक्स्ट जेएस जो है ना वो सबसे टॉप पे जा रहा होगा। ठीक है, मोबाइल पे देखोगे तो फ्लटर एंड रिएक्ट नेटिव, ये दो चीजें बहुत ऊपर नीचे हो रही होती हैं आपस में। इन पाकिस्तान जनरली फ्लटर बहुत टॉप पे जा रहा है। तो आपने ड्रिल डाउन किया कि आपने सबसे पहले ड्रिल डाउन किया अपना इंटरेस्ट, देन उसके बाद आपने डाउन किया उसकी टेक्नोलॉजी, एंड देन आपने उस टेक्नोलॉजी को जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। ठीक है, विद थोड़ा सा एक्सप्लोर से मुराद मेरा ये कि आपने पहले एक दफा देख लिया कि क्या आप उसको कर पाते हो या नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये डिसीजन जो मेकिंग है ना, विद इन 3 days आप कर लेते हो आफ्टर एक्सप्लोरिंग द टेक्नोलॉजी अ बिट कि हाँ यार ये मैं कर सकता हूँ। देन गो विद दैट 3 months 4 months ऑफ कोर्स कि भाई आप उस टेक्नोलॉजी के तमाम चीजों को एक्सप्लोर करो। ठीक है, जब आप एक्सप्लोर करोगे, डोंट जस्ट डू थ्योरी, उसको प्रैक्टिकली कुछ बनाओ उसके ऊपर। ठीक है, उसको शोकेस करो। यू विल फील कॉन्फिडेंट बाय योर सेल्फ कि हाँ यार ये काम मुझे आता है। जब तक देखो जो इंप्रेशन, जो शोकेस का इंप्रेशन है ना, वो जो आप कंपनी या रिक्रूटर के ऊपर डालते हो, वो इंप्रेशन एक्चुअली आप अपने ऊपर भी डालते हो। ठीक है, आपका जो ब्रेन है वो इस चीज को अपने रिवॉर्ड करता है कि यार मुझे आता है। वो कॉन्फिडेंस खुद आता है आपके अंदर। फिर जब तक आप शोकेस नहीं करते हो ना, तो वो कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है कि यार मुझे आता ही नहीं है शायद। क्यों आपने जो है वो थ्योरेटिकल चीजें पढ़ी एंड आपने कंसोल एप्लीकेशन बना ली अपने लोकली और आपने बंद कर दिया। ठीक है, अब आपको लगता है कि यार मुझे इतना नहीं आता। भाई आप उसको शोकेस करो ना, फिर आप देखो कि आपको कितना आता है। ठीक है, जब आप शोकेस करने जा रहे होगे ना, तो फिर आपको एक फीलिंग आती है कि यार पूरी दुनिया मुझे देखेगी, यार मेरे इस काम को देखेगी। तो आप बोलोगे यार मैं ये भी अच्छा कर लूं, मैं ये भी अच्छा कर लूं, मैं ये भी चीज ऐड कर दूं इसके अंदर। तो इस चीज से क्या होगा कि वो जो मिसिंग पीसेस हैं आपके स्किल सेट के अंदर, वो खुद ब खुद क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो ऑलवेज गो टूवर्ड्स स्टेप बाय स्टेप। ड्रिल डाउन करो अपने इंटरेस्ट, ड्रिल डाउन करो अपने, लिस्ट डाउन करो उन टेक्नोलॉजीज को, एक्सप्लोर करो, मेक समथिंग आउट ऑफ इट, शोकेस दैट थिंग, देन मूव फॉरवर्ड।
ठीक है, जब ये 4 चीजें कर लोगे ना, उसके बाद अगर कॉन्फिडेंस ना आए ना, तो प्लीज मुझसे बात कर लेना, टेंशन नहीं है। ओके, यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स फ्लटर के बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे मैं आप ऑडियंस को बता दूं कि वी आर आल्सो प्लानिंग बूट कैंप ऑन फ्लटर, 7 days बूट कैंप, एंड उसके अलावा वी आर फीचरिंग एन इंट्रोडक्टरी सेशन टू फ्लटर इन विच वी आर फीचरिंग अ GDE। तो अगर आपको थोड़ा आइडिया है आप में से किसी को, यू कैन लेट मी नो इन द चैट बॉक्स कि वो कौन बंदा हो सकता है, एंड इसका आंसर मैं इस क्वेश्चन के आंसर के बाद दूंगा। Okay, Saad bhai, here is another question कि native development, native Android development, specific iOS की तो बात अलग है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन native Android development और Flutter, इन दोनों में से कौन सी चीज सीखनी चाहिए? सवाल बहुत, इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये एक पर्सनल प्रेफरेंस होती है। लेकिन यहाँ पर मैं जो इसका जवाब दे सकता हूँ वो मैं अपनी पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर दे सकता हूँ, और मैं उसको रीजन के साथ बैक कर लेता हूँ जितने जल्दी मैं इसको जवाब दे दूँ। मेरी पर्सनल प्रेफरेंस फ्लटर होती है। अच्छा, क्यों फ्लटर होती है? उसके पीछे रीजन ये है कि एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, बिजनेस मैटर्स। आप कुछ भी करो ना, बिजनेस के ऊपर कुछ भी कर रहे हो ना यार, इट्स ऑल अबाउट मनी एट द एंड ना, क्योंकि अगर आपका कोई स्किल सेट या मैं कोई भी प्रोजेक्ट ले रहा हूँ या मैं कोई प्रोजेक्ट डिलीवर करना है मुझे, एट द एंड इट इज इम्पैक्टिंग माय बिजनेस, राइट? एज अ फ्रीलांसर्स इट इम्पैक्ट्स माय फ्रीलांस स्किल्स। अब आपको एक ऐप बनानी है, मिसाल के तौर पे ई कॉमर्स ऐप, ठीक है, तो उसमें आप मुझे ये बताओ कि क्या मैं एंड्रॉइड के लिए अलग पे करूं एंड iOS के लिए अलग पे करूं, या मैं एक ऐसे बंदे को दे दूं जो मेरे लिए दोनों चीजें इकट्ठा बना कर दे दे। तो जनरली मैं इसी चीज को प्रेफर करूंगा कि भाई मुझे एक कॉस्ट पे करनी पड़े एंड देन एंड्रॉइड और iOS दोनों की बन के आ जाए मेरे पास, एंड इनफैक्ट वेब की भी बन जाए, तो क्योंकि फ्लटर वो सपोर्ट करता है बहुत अच्छी तरीके से। तो फ्लटर का रीजन ये है कि भाई मुझे एक टाइम, अ गिवन टाइम कंस्ट्रेंट इन अ गिवन बजट, मुझे दोनों तीनों प्लेटफॉर्म्स की चीज बनकर आ रही है फ्रॉम अ सिंगल डेवलपर। तो व्हाई नॉट आई गो विद अ फ्लटर डेवलपर इंस्टेड ऑफ गोइंग विद अ नेटिव डेवलपर हु वुड मैं एंड्रॉइड के लिए एक अलग डेवलपर हायर करूं, iOS के लिए अलग डेवलपर हायर करूं, एंड देन मैनेजमेंट उन दोनों की, एंड देन उन दोनों की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स। तो इससे ज्यादा बेहतर है कि भाई मैं फ्लटर एक ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करूं विच इज एक्चुअली आई बिलीव रियल नेटिव है, या नियर नेटिव है वो। ठीक है, वो हाइब्रिड प्लेटफॉर्म्स के अंदर आता है, बट इट गिव्स यू दैट नेटिव थिंग। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नेटिव एंड हाइब्रिड प्लेटफॉर्म्स। तो फ्लटर मेरी पर्सनल चॉइस हमेशा एक हाइब्रिड प्लेटफॉर्म होता है rather than going towards a native one. So, let's move on to the another question. Rashid bhai ask sir about the scope of MERN stack kindly. MERN stack के बारे में बताएं सर। MERN stack की भाई बहुत शदीद डिमांड है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। मैं MERN स्टैक का डेवलपर हूँ, मैं 4-5 स्टैक्स का डेवलपर हूँ इनफैक्ट, लेकिन MERN, अगर मैं खुसूसी MERN के ऊपर बात करूँ भाई, इसकी बहुत डिमांड है, ठीक है। इसमें रिएक्ट एंड नोड बेसिकली, ठीक है, इन दो पे ज्यादा फोकस है। मोंगो थोड़ा सा जो है वो प्रेफरेंस, डेवलपर्स की प्रेफरेंस इज विद मोंगो, लेकिन इंडस्ट्री की प्रेफरेंस इज नॉट वेरी मच विद मोंगो, ठीक है। वो ज्यादातर प्रेफर कर रहे होते कि कोई एसक्यूएल बैक्ड डेटाबेस हो। तो रिएक्ट एंड नोड इज वेरी गुड स्टफ, ठीक है। एक्सप्रेस इज गुड स्टफ, ठीक है। और मोंगो इज गुड, बट प्रेफरेंस इज अ लिटिल बिट डिफरेंट इन द इंडस्ट्री। लेकिन ओवरऑल MERN की बहुत डिमांड है भाई। Okay, Nasir Sheikh का question है, what about someone who don't have handful knowledge about modern day technology, such as Flutter, artificial intelligence, machine learning. Instead, he have better knowledge about previous technologies. मतलब थोड़ी obsolete technologies की बारे में बात कर रहे हैं शायद। तो पुरानी technologies के बारे में आपका क्या ख्याल है कि jobs available हैं? पाकिस्तान के अंदर शायद पुरानी टेक्नोलॉजीज की जॉब ज्यादा अवेलेबल है निस्बत न्यू टेक्नोलॉजीज की। AI, मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंटिस्ट्स, इन सब की जॉब्स रिलेटिवली बहुत कम है रिलेटेड टू दैट MERN एंड दैट .NET एंड .NET कोर। इन टेक्नोलॉजीज की ज्यादा है,
ठीक है, और ये जो न्यू टेक्नोलॉजीज है, एक ब्लॉकचेन है, आईओटी के ऊपर काम होता है पाकिस्तान के अंदर, तो दैट्स वन थिंग। पुरानी टेक्नोलॉजीज के ऊपर देखो, इस सवाल जो है ना, उसमें एक थोड़ा सा, अगर इसको मैं इस तरीके से आंसर करूं कि यार जो चीज तुमको आती है, जो आता है ना, वो अगर 100% आता है ना भाई, आपकी डिमांड है। ठीक है, पाकिस्तान एटलीस्ट 5 से 10 साल पीछे चल रहा है अपने इंडस्ट्रीज के। 2020 के अंदर से इसने टेक्नोलॉजी को बहुत तेजी से अडॉप्ट करना शुरू किया पाकिस्तान में, लेकिन जो पुरानी टेक्नोलॉजीज है वो पाकिस्तान से ऑब्सोलीट नहीं होती इतने जल्दी। एंड जिन टेक्नोलॉजीज की आप बात कर रहे हो कि अगर वो चाहे वो मर्न है, डॉटनेट है, एमवीसी है, डॉटनेट कोर है, या फिर कोई भी चीज है, ये सारी कोई ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजीज नहीं है भाई, ये बहुत इन है मार्केट के अंदर, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। तो जो चीज आती है, मैं ये मशवरा दूंगा कि भाई वो अच्छे तरीके से आनी चाहिए, आपकी डिमांड मौजूद है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको अगर लेटेस्ट चीज नहीं आती। साथ में मैं सिर्फ ये ऐड करूंगा कि जो लेटेस्ट चीज चल रही है, जो आप जिसको पॉइंट करना चाह रहे हो कि ये मुझको आती नहीं है, मैं ये जरूर बोलूंगा कि यार एटलीस्ट उसको एक्सप्लोर करो, एटलीस्ट वो जान लो कि यार वो है क्या चीज। ठीक है, ताकि आप अपने इंटरव्यू के अंदर वो इंप्रेशन भी कायम कर सको कि यार आई एम पैशनेट डेवलपर, दो आई हैव नॉट वर्कड ऑन इट, बट यस आई नो आई हैव एक्सप्लोर्ड दैट। मैंने कुबरनेटिस एक्सप्लोर किया, मैंने डॉकर एक्सप्लोर किया, मैंने कंटेनर्स एक्सप्लोर करे हुए, यस आई नो ये क्या चीजें हैं, इसके कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर है। ठीक है, मैंने काम नहीं किया इसके ऊपर, मुझे ये चीज बहुत अच्छी आती है, जो कि डॉटनेट है मिसाल के तौर पे। तो एक्सप्लोर करो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज, या फिर वो टेक्नोलॉजी जो नहीं आती, और जो चीज आती है उसको 100% एटलीस्ट कर लो। ओके, क्वेश्चन अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग। अच्छा, क्लाउड कंप्यूटिंग से एक बात मुझे याद आई, मैं थोड़ी देर में लिंक शेयर कर रहा हूँ एक यहाँ पे चैट बॉक्स में। क्लाउड कंप्यूटिंग पे हम एक इंट्रोडक्टरी सेशन कर रहे हैं, जो कि सुमेर बलोच करवा रहे हैं, जो कि साद भाई के भी मैनेजर हैं इन रॉयल साइबर। तो उसके लिए भी मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा, RSVP आप कर सकते हैं वहाँ पे जाके। अच्छा, वैसे इस सेशन की रिकॉर्डिंग हो रही है, तो जिन लोगों ने मिस कर दिया है कोई चीज, तो वो आप देख सकते हैं फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे, GDSC म्यूट के यूट्यूब चैनल पे। अच्छा, क्वेश्चन है नबील हैदर चौहान का, सर वेयर डू यू सी अदर डोमेन्स इन कमिंग टाइम और ऑनगोइंग, लाइक साइबर सिक्योरिटी, गेम डेवलपमेंट, ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्लाउड इन पाकिस्तान? एक एक करके मैं बता देता हूँ। सॉरी, मेरे पास भी सवाल सामने खुला हुआ है। अच्छा, तो सबसे पहले इन्होंने बात करी है साइबर सिक्योरिटी की। साइबर लिखा हुआ है, चलो मैं साइबर सिक्योरिटी समझता हूँ। तो साइबर सिक्योरिटी का स्कोप पाकिस्तान के अंदर भाई इमेंस है, बहुत है स्कोप साइबर सिक्योरिटी का। ठीक है, क्योंकि उसके पीछे रीजन ये है कि हमारी इंडस्ट्री अब अवेयर हो रही है इस बात से कि जो इंटरनेट की ये जो आपकी डिजिटल सिक्योरिटी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले इस चीज के ऊपर इतना फोकस नहीं था, तो इसलिए इस पे कोई बात भी नहीं होती थी, ना साइबर सिक्योरिटी के लिए जो है ना वो रिक्रूटमेंट होती थी। लेकिन अब जो है वो काफी फोकस है इसके ऊपर। इनफैक्ट मेरी कुलीग है जो कि रैपिड कंप्यूट के अंदर है, ठीक है, एंड शी इज वन ऑफ द बेस्ट साइबर सिक्योरिटी एजेंट्स ओवर देयर। तो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर काफी काम है। गेम डेवलपमेंट के ऊपर पाकिस्तान में काम होता है, बिल्कुल होता है भाई। भले से पाकिस्तान लगता नहीं है, आप आज इतने सारे गेम्स खेलते होगे जो मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता चलता कि वो कहाँ पे बने। और इत्तेफाक से उसमें से काफी जो है वो गेम्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान के अंदर ही डेवलप हुए थे, लेकिन वो शिप बाहर हुए थे, तो वो मार्केट बाहर हुए। ठीक है, बने बाहर की कंपनियों के लिए, लेकिन वो बने पाकिस्तान के अंदर थे। तो देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ गेम डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। मैं खुद पर्सनली जानता हूँ ऐसे गेम डेवलपर्स को जो पाकिस्तान के अंदर कंपनीज है शारफ फैसल के ऊपर, जो क्या कहते हैं गेम डेवलपमेंट पे काम कर रही हैं। आईओटी का स्कोप रिलेटिवली कम है, लेकिन आईओटी का स्कोप है यहाँ पे मौजूद, और काफी प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो शिप किए गए बाहर अब्रॉड के प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन वो बने पाकिस्तान के अंदर। कुछ गाड़ियों से रिलेटेड इनफैक्ट मैंने काम किया है, राशिद ने उस पर काम किया, आईओटी से रिलेटेड कुछ एक प्रोजेक्ट है। तो वो होते जनरली बाहर के लिए है, अब्रॉड कंट्रीज के लिए, लेकिन वो बने पाकिस्तान में होता है। आईओटी के ऊपर काम होता है, आरपीए के ऊपर तो विद इन पाकिस्तान इंडस्ट्री भाई बहुत काम होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इनफैक्ट हम एक पूरी टीम है
मेरी प्रीवियस कंपनी जहां से मैंने रिजाइन किया था रॉयल साइबर से पहले, तो वो पूरी एक टीम जो है ना वो एचबीएल के अंदर उसका काम ही सिर्फ जो है ना वो आरपीए से रिलेटेड है। तो आरपीए पे काम होता है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। और क्लाउड के ऊपर मैं यूं बोलूंगा कि डायरेक्टली क्लाउड के ऊपर उसको पिच नहीं किया जाता, लेकिन जनरली जो होस्टिंग्स हो रही होती हैं, जो कम्युनिकेशंस हो रही होती हैं, वो क्लाउड पर ही होती हैं। तो क्लाउड इंजीनियर्स की, इनफैक्ट रॉयल साइबर में क्लाउड इंजीनियर्स की एक बड़ी तादाद है, ऑफ ऑल 3 टॉप क्लाउड इंजीनियर्स। तो भाई क्लाउड पे भी काम है। तो जो जो नबील ने पॉइंट आउट करी है सारी चीजें, काफी सारी ये वो है डिमांड में, अदर देन ब्लॉकचेन इतनी ज्यादा डिमांड में नहीं है पाकिस्तान में। ओके, देयर वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम सानिया मुहियुद्दीन। तो सानिया, आपकी वो बात मैंने क्लियर कर दी है, मैंने लिंक शेयर की है जो कि एग्जैक्टली इज द सेशन दैट यू आर लुकिंग फॉर, कि पूरा उसी पे होगा कि आप किस तरह से क्लाउड में अपना करियर बना सकते हैं। सो इट्स फ्रॉम अ वेरी काइंड ऑफ टेक्निकल एंड टैलेंटेड पर्सन, तो वो आप चेकआउट ज़रूर करें। वो मेहरान का एलुमनाई भी है, सर सुमेर बलोच। सो प्लीज़ डू चेक इट आउट आवर नेक्स्ट इवेंट। और फ्लटर के बारे में आपको बता दूं, जो कि हम सेशन करवा रहे हैं, वी आर फीचरिंग वलीद अरशद, जो कि the only GDE in Pakistan, male GDE for Flutter in Pakistan, Google Developer Expert. Okay, guide me about Internet of Everything. साथ भाई, Internet of Everything के बारे में थोड़ा बताएं। देखो पाकिस्तान के अंदर, अगर पाकिस्तान की बात करें तो देखो हाँ वही सेम बात है, थोड़ी सी लेट अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी है हमारे। इतने ज्यादा तेजी से हम इस ऑटोमेशंस को, इस स्मार्ट डिवाइसेस को और ये स्मार्ट कम्युनिकेशंस को हम इन चीजों के ऊपर जल्दी अडॉप्ट नहीं कर रहे। लेकिन जो है मार्केट वाइड जो इंडस्ट्री है पूरी, उसके अंदर तो हाँ भाई इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट लाइक यू नो इट, पीपल आर अडॉप्टिंग टुवर्ड्स इट। डेवलपर्स सॉल्यूशंस, मेनली सॉल्यूशन डिजाइनिंग है। डेवलपर्स इतने ज्यादा ठीक है, ऑलमोस्ट देयर इज नथिंग एज आप बोलो कि आई एम यू नो एन आईओटी डेवलपर, ठीक है। Actually you are a developer of a certain technology and you know how to do that internet of things and internet of everything, ठीक है। it's just a whole complete concept। तो yes, इसकी डिमांड मौजूद है। अच्छा, और व्हाट्सएप से क्वेश्चंस मैं नहीं ले रहा फिलहाल, लेकिन अच्छा बेबी स्टेप्स के बारे में बात करें, सिंपल स्टेप्स जो कि हमें इंटर्नशिप की तरफ ले जा सकते हैं इजीली, वो बता दें। अपने स्किल सेट को भाई, वही जो मैंने इससे पहले आंसर किया हुआ है, स्किल सेट्स को जो है वो ड्रॉप डाउन करो, पहले ड्रिल डाउन करो। आपका स्किल से आपका इंटरेस्ट क्या है, उस स्किल्स उस इंटरेस्ट के अंदर आपके क्या स्किल्स है, ठीक है, कौन सी टेक्नोलॉजी है, कितनी आती है। जब वो सारी चीजें ड्रिल डाउन कर लो, देन आपके पास एटलीस्ट ये आपको डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी कि आपने किस कंपनी में अप्लाई करना है एंड एटलीस्ट किस टाइप की कंपनी में अप्लाई करना है। देन आपकी जो सर्चेस हैं, जो आप गूगल सर्च कर रहे होगे फॉर दैट इंटर्नशिप या फॉर दैट जूनियर लेवल जॉब, ठीक है, वो थोड़ी सी ड्रिल हो जाएंगी। तो उसके बाद आप अप्लाई करो एंड बी कॉन्फिडेंट व्हेन यू अप्लाई। कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है एंड कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपने अपने आप को इवेल्युएट कर लिया होगा पहले। बेबी स्टेप्स। ओके, सो थैंक यू सो मच साद भाई, काफी इंसाइटफुल टॉक इंडीड। काफी सारी चीजें मैंने सीखी अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो हम कनेक्टेड ही हैं, लेकिन काफी सारी चीजें सीखने को मिली हैं थ्रू आउट दिस सेशन। और उम्मीद है कि हमारे पास फीडबैक फॉर्म भी आएगा इंशाल्लाह। काफी स्टूडेंट्स को काफी सारी चीजें सीखने में मदद मिली होगी। एंड आई गेस दैट्स ऑल। कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं है। साद भाई, वंस अगेन थैंक यू सो मच। आपने यार मुझे 1 मिनट दे दो। अब्दुल रजाक ने एक सवाल बहुत अच्छा पूछा हुआ है। राशिद भाई, माय क्वेश्चन इज दैट वी फोकस ऑन फ्रेमवर्क्स या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, प्लीज गाइड मी। जिस स्टेज में हो ना अपने कैरियर के, उस पे सबसे पहले लैंग्वेज पे फोकस करो एंड लैंग्वेज जब कर रहे हो उसको एक लेटेस्ट फ्रेमवर्क के ऊपर इंप्लीमेंट करो। अगर आप मिसाल के तौर पे Node.js पे काम कर रहे हो, जो लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट है, तो Node.js आपने चूज करी है, देन choose a best framework of Node.js। Let's say आपने चूज किया Nest, ठीक है, NEST, तो एटलीस्ट आपने उसका बैकएंड से रिलेटेड आपने सारी चीजें कर ली, तो वो पूरा कंप्लीट एक्सटेंसिव फ्रेमवर्क है, ठीक है। और अगर आप फ्रंट एंड से रिलेटेड काम कर रहे हो Node.js के ऊपर, देन यू नो go towards just React, I will say go towards Next,
ठीक है, तो आप वो फ्रेमवर्क यूज करो जो कि बेस्ट हो, मार्केट के अंदर ट्रेंडिंग हो। आप बेस्ट चूज नहीं कर सकते विदाउट एक्सपीरियंस, ठीक है, तो आप ट्रेंडिंग देखो कि कौन सी चीज सबसे टॉप पे जा रही है, यूज दैट फ्रेमवर्क फॉर योर पोर्टफोलियो एंड शोकेस, ठीक है। तो दोनों चीज आंसर होती हैं इसमें। यस, ओके, थैंक यू साद भाई, वंस अगेन थैंक यू सो मच, और थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। यार आप लोग हमें गाइड किया करो कि कौन से सेशन एक्चुअली हम करवाएं, तो ये डिपेंड आप पे करता है। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं हर जगह पे, गूगल DSC म्यूट के नाम से, वहाँ डायरेक्टली आप मैसेज करके हमें बता सकते हो कि हम किस तरह के सेशंस अरेंज करवा सकते हैं, तो हमें भी हेल्प मिल जाती है काफ़ी। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग विद अस टुडे, और बाकी आपको सर्टिफिकेट्स इंशाल्लाह इस वेबिनार के मिल जाएंगे, सर्टिफिकेट्स ऑफ तो पार्टिसिपेशन। मुझसे अगर किसी ने भी कांटेक्ट करना हो, प्लीज फील फ्री टू कांटेक्ट मी, ठीक है। लिंक्डइन के ऊपर आप मेरे लिंक्डइन के हैंडल्स शायद शेयर हुए होंगे, तो प्लीज फील फ्री। ओके, सो थैंक यू Thank सो you guys. मच, Bye bye Rashid. थैंक यू गाइस, Thanks for having थैंक me. यू साद भाई, Thank you. अल्लाह हाफिज़। Bye bye.